Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating System Concepts. Students, we are studying chapter number 6 of our textbook, and that belongs to deadlocks. In the last lecture, we were talking about the deadlocks, and we finished the deadlock detection and deadlock recovery. Then I just wanted to complete deadlock avoidance, but I could not complete that, so we will do it now. So let's start with the deadlock avoidance. First of all, deadlock avoidance is that we have seen that we can detect the deadlocks, and in the deadlock detection and recovery, we said that let the deadlock happen, and then we can just recover that. But in the deadlock avoidance, we allow the chance of deadlock to occur but avoid it happening when it's just going to happen. फर्क समझ में आया कि डिटेक्ट एंड रिकवरी में हमने बिल्कुल डेडलॉक को होने दिया और फिर उसके बाद उसको रिकवर किया, एंड आई टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन रिकवर दैट. यहाँ पे भी हम चलने देते हैं, बट just before a deadlock is going to happen, we avoid it. ठीक है, उससे पहले हमें पता भी नहीं चलता ना. लेकिन हमने देखा था लास्ट मेथड में कि लास्ट लेक्चर में कि हमने एक मेथड देखा था जिसमें कि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था. तो एटलीस्ट एक स्टेज पहले हमें अंदाजा हो जाता है कि इस जगह पर जाकर डेडलॉक जो है वो अकर हो जाएगा, तो क्या हम उससे पहले उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो लेट्स सी दैट. सो वी चेक वेदर द नेक्स्ट स्टेट that is a change in the system may end up in a deadlock situation, then avoid it. State क्या है? State है resources की allocation की. तो हम देखते हैं कि क्या किसी resource को allocate करते हैं अगर किसी process को, तो क्या हम उस डेडलॉक वाली स्टेज पे चले जाएंगे, और ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम उसको डेडलॉक को उस अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि उस रिसोर्स को एलोकेट ना करें. बट इट्स वेरी ट्रिकी. अब ये देखना है कि हाउ कैन वी डिटरमिन के process or the system is going to enter into a deadlock situation. तो एक जस्ट टू एक्सप्लेन, हम ग्राफिकल मेथड हमने पहले पढ़ा था, अब एक हम प्लॉट करते हैं सिचुएशन को और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, what actually we want to do in order to avoid the deadlock, and then we will see and discuss some professional ways and means through which we can avoid the deadlock. So this is just a plot of a graph or a situation where we have two processes. Process A is moving from in the x-axis direction, and process B is moving in the y direction. This is the activity, this is the time quantum, where the aggregated dotted line है, it shows that PQ is a time quantum that has been allocated to process A. Then QR is a time quantum in which the time quantum has been allocated to process B. अब ये देखें, this belongs to this, और ये जो है it is in the direction of A, so this time quantum belongs to process A. Then यहाँ पे सपोज हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया है कि यही दो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जस्ट कि हम समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. सो एट पॉइंट आर the time quantum is once again allocated to process A, and at stage L1 जब ये time quantum allocate हुआ ना, तो इसमें at stage L1 process A requested printer 1 and suppose that the printer 1 has been allocated, और ये printer जो है L1 टाइम पे इसने रिक्वेस्ट किया था और L3 टाइम के ऊपर ये printer को रिलीज कर देगा. आफ्टर रिक्वेस्टिंग and getting the printer allocated to process A, फिर context switch होती है और जनाब आप process B को दे देते हैं time quantum. At time situation at L5, which is our ST time, यहाँ पर जाकर के process B request for a resource, और वो resource है आपका plotter, or it's going to just retain it up to this point.
ठीक है ना, यहां तक कि इट वुड लाइक टू रिटेन इट हियर। अब हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये प्रोसेस जब आगे चलेगा, सपोज अब दोबारा ए को प्रोसेस मिल जाता है, सीपीयू मिल जाता है प्रोसेस ए को, और इट रीचेज एट पॉइंट दिस वेयर द प्रोसेस एट I2 कह देंगे, L2 कह देंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इट डिमांड्स another रिसोर्स, और ये रिसोर्स इसने यहाँ पर क्या डिमांड किया, इसने प्लॉटर डिमांड कर दिया कि इतने टाइम पीरियड के लिए इसको प्लॉटर चाहिए। नाउ अब जैसे ये डिमांड करेगा तो क्या होगा कि प्लॉटर हैज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू प्रोसेस बी, सो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जनाब प्रोसेस जो है वो बी जो है विल कैच होल्ड ऑफ द सीपीयू, एंड जब बी जो है वो पहुंचेगा I6 या L6 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, तो बी जो है वो डिमांड कर देगा कि आई नीड अ प्रिंटर। Process B already holding a plotter which was allocated at I5, and at I6 it has demanded a printer, so it will be blocked. Whereas the process A, who has caught hold of the printer at I1, has demanded a plotter at I2 and has blocked. So both the processes have been blocked. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर स्टेज तक हमारे पास कोई डेडलॉक वाली सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पे भी कोई डेडलॉक की सिचुएशन नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पर जब इसने डिमांड किया प्लॉटर तो यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हुई। तो अगर हम किसी वजह से इसको प्लॉटर स्टेज के ऊपर एलोकेट ना करें, समहाउ हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि अभी इसने प्लॉटर जो है वो प्रोसेस ए को भी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि इसको, अब इसके पास कोई और रिसोर्स नहीं है बी के पास, हम इसको ब्लॉक कर दें। अगर हम बी को इस स्टेज के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेज पे, I5 पे या L5 पे जो है, लेट्स अज्यूम कि ये L5 है, L5 के ऊपर उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हम सिर्फ ब्लॉक रहेगा और प्रोसेस ए जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और कंटिन्यू होने के बाद प्लॉटर इसको एलोकेट कर देंगे I2 के ऊपर बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड, और ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ ये कि प्लॉटर बल्कि प्रिंटर दोनों के दोनों रिलीज कर देगा I4 पे। और इस स्टेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोसेस बी को टाइम क्वांटम एलोकेट कर दें और अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दें, तो इस तरीके से दोनों प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड वी विल अवॉइड द डेडलॉक। ठीक, तो आपने देखा कि this was just to explain you कि how can we enter into the situation to avoid a deadlock। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने डेडलॉक अवॉइडेंस के हवाले से आपको थोड़ा सा डिटेक्शन के हवाले से मैंने एक आपको टेबल दिखाया था, उसको मैनिपुलेट करके एक एल्गो की भी बात की थी, उसको भी हम अब थोड़ा सा दोबारा कंसिडर करेंगे। उसको बेसिकली पर्पस ये था कि डिटेक्ट करना था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अवॉइडेंस के हवाले से कर दिया था, तो मैं उसको भी थोड़ा सा चाहूंगा कि उसकी भी मैं थोड़ी सी करेक्शन करूं। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी वुड लाइक टू डिफाइन two things. One is called a safe state. This is a safe state, and another one is a unsafe state. A safe state जो है वो क्या होती है? When no deadlock, there exists some scheduling order in which every process can run to completion, even if all the required resources had suddenly been requested by the process and allocated to that particular process. ओके, सो आपके जो सारे प्रोसेसेस हैं, अगर वो सडनली सारे रिसोर्सेज डिमांड कर लें और आप उनको इवन सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर दें, एंड येट you have a sequence through which you can complete not only one particular process but all the processes, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये सेफ स्टेट है। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां पे कि आप एलोकेट कर चुके हैं प्रोसेस जो है वो प्लॉटर को रिवर्स प्लॉटर जो है वो प्रोसेस बी को आप एलोकेट कर चुके हैं, तो ऐसी स्टेट में आप जो है वो अनसेफ स्टेट के अंदर आ गए, यानी कि आप डेडलॉक सिचुएशन में एंटर हो गए हैं। तो दो स्टेट्स हमने देखनी है। सेफ स्टेट वो स्टेट है कि जो अभी हम मुश्किल में नहीं फंसे और वी हैव गॉट
chance to allocate the processes intelligently to the allocate the resources intelligently to the processes such that we can avoid the deadlock situation. और unsafe state कौन सी है कि we have entered into the situation where the resources have already been allocated to the process and we cannot continue for the completion of every process. ठीक, और इस सिचुएशन को, वो जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी ना, उसका मकसद बेसिकली आपको बताना था डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दी मैं आपको बता रहा हूँ को वो अवॉइड करवा दिया था मैंने डेडलॉक को. ओके, सो सेफ स्टेट जो है इसमें अगर हम उसी को दोबारा देखते हैं, सपोज एक एनवायरनमेंट है वेयर वी हैव गॉट 3 प्रोसेसेस एंड वेयर वी वुड लाइक कि द प्रोसेस जो है, ईच प्रोसेस सपोज ए जो है उसको ऑलरेडी आपने 3 रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं और 9 रिसोर्सेज जो है उसको मजीद दरकार है. Process B already have 2 resources allocated and 4 are additionally required. Process C has 2 resources allocated and 7 are required. So are we in a safe state if there are 3 more resources are available? तो हम इसी को देखते हैं कि सपोज इस सिचुएशन में हम प्रोसेस बी को पिक करते हैं और आउट ऑफ दी 3 वी एलोकेट 2 resources which are still required, क्योंकि 2 को allocate हुए हैं, 2 को और चाहिए क्योंकि maximum 4 है, maximum 4 meet करने के लिए we require 2, so we allocate these 2 resources additionally to process B. Suppose we allocate these resources to process B, इसकी डिमांड पूरी हो गई, then we expect कि it will return back all the resources. तो ये 4 resources जो है will return back and now the free resources will be 5. ओके, सो अभी तक हम सेफ स्टेट के अंदर हैं. अब इन 5 रिसोर्सेज को ए को दे नहीं सकते. अगर हम ए को एक भी रिसोर्स दे देंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो जो अवेलेबिलिटी है वो 4 रह जाएगी और हम पूरा नहीं कर पाएंगे. लिहाजा हम अगर ए रिसोर्स डिमांड करता है एट दिस स्टेज पे तो हम इसको एलोकेट नहीं करेंगे बल्कि इसे ब्लॉक करा देंगे. और व्हाट वी विल डू कि वी विल एलोकेट दीज 5 रिसोर्सेज टू प्रोसेस सी. सो सी विल हैव इज ऑल मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेटेड एंड हेंस सी विल बी कंप्लीटेड एंड इट विल रिटर्न ऑल 7 रिसोर्सेज. तो ये 7 के 7 रिसोर्सेज आपके पास आ गए. अब 6 रिसोर्सेज यू कैन एलोकेट टू ए एंड हेंस ए विल बी कंप्लीटेड. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन दैट द स्टेट इज अ सेफ स्टेट. ओके, अब ये देखते हैं अनसेफ स्टेट. उसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं कि सपोज अगर हम यहाँ पर 3 रिसोर्सेज हैं और इन 3 रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स जो है वो हम एलोकेट कर देते हैं ए को, तो क्या हमारी ये स्टेट जो है वो सेफ है? हालांकि यहां पर हमें सेफ नजर आ रही है, लेकिन यहां पे हमने 1 बाय 1 ट्राई आउट करना है कि क्या इस स्टेट से हम सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करा पाएंगे. तो लेट अस सी दैट कि सपोज वी हैव दीज 2. Fair enough, we allocate these 2 resources to B. Still now the B will have 4 out of 4 resources required, so B should be able to complete and B will return all 4 resources and these 4 resources are available here. Now in this situation here at D, C require 5 and A require 5. So neither A will be completed nor C will be completed. So this state is an unsafe state. और ये अनसेफ स्टेट कहां पर हुई थी? ये अनसेफ स्टेट यहीं पर हो गई थी जब हमने एक गलत डिसीजन लिया था. बाय एलोकेटिंग 1 रिसोर्स आउट ऑफ 3 वी एलोकेटेड 1 रिसोर्स टू ए और हमने ये अज्यूम करके कि शायद हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं जो हम बी को दे देंगे और बी क्वालिफाई करके 4 रिसोर्सेज हमें दे देगा. नहीं, इस पर्टिकुलर स्टेज में वी वर सपोज टू फाइंड आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस सो दैट के वी कुड इंश्योर कि इस स्टेज तक इट वाज अ सेफ स्टेट. क्योंकि अगर ये डिसीजन हम ना लेते तो वी वुड हैव वो जो पिछला मैंने एग्जांपल में दिखाया, इसकी बजाय हम ये ए को देने की बजाय हम बी को देते और फिर हमारे पास एक स्टेज पे 5 रिसोर्सेज आ जाते, फिर हम उस रिसोर्स को आइदर ए को दे देते या हम बी को दे देते. तो वी वुड वी should have been able to complete the combination और हम इस सारे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट मीट कर लेते और हम उसको सर्व कर सकते. तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एन अनसेफ स्टेट.
ओके कौन सी, जो कि हमने बी के टाइम पर जो हमने डिसीजन लिया वो गलत हो गया, और ये डिसीजन जो है बेसिकली हमें यहां पर सही डिसीजन लेना था। ठीक है, तो डिसीजन हमने कब लिया था, ए के ऊपर डिसीजन लिया था। ओके, सो विद ओनली 4 फ्री नाइदर ए नॉर सी कैन बी कंप्लीटेड एंड सेटिस्फाइड। ये तो हमें उस वक्त पता चला जब हम सिचुएशन में फंस गए थे। ओके, लिहाजा हमें यहां पर डिसीजन लेना चाहिए था इस स्टेज के ऊपर। ओके, सो बैंकर्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल रिसोर्स एज वेल एज फॉर द मल्टीपल रिसोर्स। पहले हम सिंगल रिसोर्स के हवाले से देखते हैं और फर्दर कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं। Each process has a loan and maximum need and claim. Suppose this is the information that we have in the beginning. So let's define what is the loan. Loan is the current number of resources held. Maximum need is the total number of resources that could be demanded by any client, और client क्या आपका process. And claim क्या है कि किसी भी प्रोसेस का क्लेम हमारे पास क्या है, तो किसी भी प्रोसेस का क्लेम क्या है कि मैक्सिमम नीडेड माइनस द करंटली हेल्ड नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो किसी बैंक ने कमिट किया है अपने क्लाइंट के साथ कि हम आपको इतना लोन दे देंगे, इसमें से जितना लोन उसने ऑलरेडी लिया हुआ है मैक्सिमम में से वो माइनस कर दें, तो ये वो क्लेम है जो किसी क्लाइंट का बैंक के ऊपर हो सकता है। अब बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ असम्पशंस हैं बैंक की और कुछ उसकी स्ट्रेटेजीज हैं। पहले असम्पशंस की बात करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी या एल्गोरिदम की बात करेंगे। ओके, assumptions, what are the assumption? Establish a loan ceiling that is maximum needed for each process. हर प्रोसेस को जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उसके साथ डिसाइड करवें कि उसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, उसको जो सैंक्शन दी जा रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन की वो कितनी है। सो मैक्सिमम नीडेड is the total number of resources available, that is the capital, यानी कि maximum needed जो है should be less than the total number of the capital। ज़ाहिर है बैंक के पास जितना कैपिटल है उसने उसी में से उसको सैंक्शन देनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक का जो अपना सैंक्शन है, जो बैंक के पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उससे ज्यादा ओवर कमिट करवे बैंक। सो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है आपका कि आपके जो मैक्सिमम नीडेड है शुड बी दी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो बैंक कमिट कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ। देन द टोटल लोन फॉर अ प्रोसेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम नीडेड। ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया है इसके अंदर रहते हुए बैंक को कमिटमेंट करनी है। Loan resources must be returned back in finite time, assume immediately after completion। यानी कि जो अब आप लोन आप देते हैं और अगर प्रोसेस को आपने मैक्सिमम लोन उसको जब दे दिया तो फिर आप अज्यूम करें कि वो फौरी तौर पर रिसोर्सेज सारे के सारा जो जितना लोन उसने लिया है वो सारे के सारा लोन जो है वो रिटर्न बैक कर देगा। सारे रिसोर्सेज जो आपने एलोकेट किए हैं दैट विल बी रिटर्न बैक टू द सिस्टम। और यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक जब मैक्सिमम लोन कोई एक क्लाइंट जो है वो एंजॉय कर लेता है तो उसके बाद उसको फौरी तौर पर सारे का सारा लोन जो है वो उसको रिटर्न बैक करना होगा। Okay, so the total resources available are much less than the total committed accumulated resources। कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता कि वो जितने सारे क्लाइंट के साथ कमिटमेंट है उतने ही रिसोर्सेज अपने पास मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल इस पिछली एग्जांपल में अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पर जो कमिटमेंट की हुई है बैंक ने वो यहाँ पर अगर आप देखें 9 और 413 एंड 720 की कमिटमेंट है और अगेंस्ट जो फ्री रिसोर्सेज कितने हैं 3 और 25 और 27 और ये 3 अवेलेबल है, यानी कि उसके पास 10 के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रखी हुई है और कमिटमेंट उसने 20 की है बैंक ने। और यही अजम्पशन होती है कि एक वक्त में सारे के सारे क्लाइंट जो हैं वो अपना लोन जो है वो जो उसका क्रेडिट लिमिट है वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको आप थोड़ा सा वेट करवाएं। और ये आप टर्म्स एंड कंडीशन में अपने क्लाइंट के साथ रख लें कि जब आप लोन डिमांड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैश अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आइदर इफ द कैश इज अवेलेबल और इफ द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बैंक आपको एलोकेट भी करा सकता है और आपको वेट भी करा सकता है। ओके,
With these assumptions and the explanation definition, this is the algorithm जो मैंने last time शायद आपको थोड़ा सा explain भी कर दिया था, but these are the actual algorithm statements जो कि हमें पता होनी चाहिए. So we search for a process with a claim that can be satisfied using the current number of remaining resources, that is the tentative grant to the claim. आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास current कितने रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और करंट क्लेम जो है वो प्रोसेसेस का कितना कितना है, और उन सारों को एनालाइज करने के बाद इफ सच अ प्रोसेस इज फाउंड देन अज्यूम दैट इट विल रिटर्न ऑल द लोन्ड रिसोर्सेज, कि जब आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो ये सारे रिसोर्सेज आपको वापस कर देगा. देन अपडेट द नंबर ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज, आप उसको अपडेट करें एंड रिपीट स्टेप नंबर 1 2 3 फॉर ऑल प्रोसेसेस. और अगर सारे के सारे प्रोसेस इस फेज से निकल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि द सिस्टम इज नॉट इन ए ब्लॉक्ड स्टेट. ठीक है, और हम इसको इंटेलिजेंट भी रिसोर्सेज देंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड, हम पढ़ क्या रहे हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेडलॉक हम बड़े इंटेलिजेंट भी अपने आप को उस ब्लॉक स्टेट में, अनसेफ स्टेट के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, सेफ स्टेट में रहते हुए हम प्रोसेस करेंगे. कैसे? दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट ग्रांट द क्लेम इफ एटलीस्ट वन प्रोसेस कैन नॉट बी मार्क टू कंप्लीशन. ठीक है, आप किसी भी प्रोसेस का क्लेम जो है उस वक्त तक सेटिस्फाई ना उसको मत दें जब तक कि आप एटलीस्ट वन प्रोसेस मार्क टू कंप्लीशन जो है वो आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड टू गोइंग टू दी अनसेफ स्टेट. So implementation क्या है? Resource request is only allowed if it result in a safe state. हर टाइम पर आपको एक safe state के अंदर रहना है. The system is always maintained in a safe state, so eventually all requests will be fulfilled. और एडवांटेज इसकी क्या है? इस सारे सिनेरियो की एडवांटेज ये है कि it works. ठीक है, हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल लेकर. इट रियली वर्क्स एंड गिव्स यू अ कॉम्बिनेशन, अ सीक्वेंस थ्रू विच यू कैन जस्ट फाइंड आउट द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस. वो सीक्वेंस आपको पता चल जाता है. यूजिंग दैट सीक्वेंस यू कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस. ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है? इट अलाउज द जॉब टू it allows the job to proceed where a prevention algorithm won't. ठीक है ना, ये जो पिछले बार हमने पढ़ा था कि डिटेक्ट एंड रिकवरी अभी हमने पढ़ा, प्रिवेंशन अभी हम पढ़ेंगे. प्रिवेंशन के केस में हम उसको आगे चलने ही नहीं देते बल्कि उसको प्रिवेंट करते हैं, और यहाँ पर हम इसको चलने देते हैं लेकिन हम उसको अपने आप को सिस्टम जो है अनसेफ स्टेट में नहीं जाने देता, टेम्परेरी भी किसी प्रोसेस को ब्लॉक करता है ताकि आप जो है वो सेफ स्टेट के अंदर रहें. प्रॉब्लम्स क्या है? देर आर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ डिफिकल्टीज हैं तो ये तीन, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, इट रिक्वायर्स दैट देर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स you always assume that if there are 4 tape drives, these 4 tape drives will remain available to the system. लेकिन नॉर्मल ग्राउंड रियलिटी में ऐसा होता है कि आपकी कोई टेप ड्राइव जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एंड देन इट टेक्स मे बी डेज और मे बी वीक्स फॉर द रिपेयर. तो इफ अ टेप ड्राइव इज नॉट अवेलेबल, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है, जो कोडिंग है, वो अज्यूम करते हैं कि 4 अगर टेप ड्राइव्स हैं तो 4 की 4 अवेलेबल है. सो यू नीड टू अपडेट दैट, और वो डिफिकल्ट होता है कि आपको, क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ अ रिसोर्स गोज डाउन. वही कि आपके जो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं वो आपके ऑल द टाइम अवेलेबल है, और अगर कोई रिसोर्स गोज डाउन देन यू हैव अ प्रॉब्लम. सो डज नॉट अलाउ द प्रोसेस टू चेंज इट्स मैक्सिमम एंड नीड व्हाइल प्रोसेसिंग. अब ऐसा है कि हो सकता है कि प्रोसेस को व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ये पता चले कि जो मेरा मैक्सिमम है वो इससे ज्यादा मुझे रिसोर्स रिक्वायर्ड है, मुझे 3 की बजाय 4 टेप ड्राइव्स रिक्वायर्ड है. सो आई विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट. सिमिलरली रिवर्स भी है
कि अगर हम इसमें एज्यूम ही नहीं कर रहे कि प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स को अगर दरमियान में उसको ज़रूरत नहीं है, देन द प्रोसेस शुड बी एबल टू रिटर्न बैक द रिसोर्सेज। सो ये चंद एक ऐसी एजम्पशंस हैं जो कि हमने अपनी एजम्पशंस में उसको कंसिडर नहीं किया इन ऑर्डर टू कीप द सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड, और उसी फॉर्म के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। सो लेट्स टेक द एग्जांपल जिसमें कि बैंकर्स एल्गोरिथम एसआर कहते हैं विद अ सिंगल रिसोर्स। अभी हम अज्यूम करते हैं समझने के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, आई एम रिपीटिंग इट अगेन with different numbers and different figures. So we have got 4 processes A, B, C, D, and requirement of A is maximum 6 resources, B 5, C 4 and D 7, and total number of free processes are 10. अब देखें वही situation है, 6 and 5 11 और 4 15 and 7 22 resources की commitment है बैंक की, और बैंक ने कैश में सिर्फ 10 रिसोर्सेज दिए। तो वी लाइक टू सी हेयर कि ये हाउ इट विल वर्क। सो वी सी डैट के ये सिचुएशन हो गई है किसी स्टेज के ऊपर कि आपके पास ए को आपने एक रिसोर्स दिया, बी को 1, सी को 2 और डी को 4, और आपके फ्री रिसोर्सेज हैं 2। सो ए जो है स्टेट इज सेफ है और बी स्टेट जो है वो एक अनसेफ स्टेट है। यहां पर यू कैन फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन। अब वो हम देखेंगे कि ये कैसे ए स्टेट है और बी कैसे अनसेफ स्टेट है। सो लेट अस सी कि हम इसको रन करके देखते हैं। बी इज सेफ बिकॉज फ्रॉम बी वी कैन गिव सी टू मोर। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई। हम बी स्टेट के अंदर बी इज अ सेफ। अभी हमने रिसोर्सेज की ये सिचुएशन है कि हमारे पास 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यहां पर ये 1 1 2 4 6 5 4 7 1 1 2 4 6 5 4 7। Suppose these 2 resources are allocated to C and C will return back the 4 resources. So आपके पास अब रह जाएंगे 4 resources. Then you issue 1 to B. अच्छा, पहले मैं जिससे यहाँ पे कंप्लीट ही करने दें, फिर मैं आगे नेक्स्ट लेकर जाऊंगा आपको समझाने के लिए। ओके, आई थॉट कि आई हैड द एग्जाम्पल, लेकिन वो शायद आगे आएगी एग्जाम्पल। तो अब यहाँ मुझे ज़बानी एक्सप्लेन करना है। नाउ वी हैव गॉट 4 रिसोर्सेज अवेलेबल। अब हम क्या कर सकते हैं कि आइदर हम बी को फैसिलिटेट कर सकते हैं या हम डी को फैसिलिटेट करते हैं। सपोज हम यहाँ पर बी को फैसिलिटेट करते हैं और 4 के 4 रिसोर्सेज बी को दे देते हैं, तो क्या होगा, बी विल बी कंप्लीटेड, और ये जो 4 रिसोर्सेज हैं अब हमारे पास ये हो जाएंगे 5, क्योंकि बी जो है अपने मैक्सिमम 5 रिसोर्सेज रिटर्न करेगा। जब 5 रिसोर्सेज हमारे पास आ जाएंगे तो आइदर वी कैन गिव इट टू ए एंड ए कैन बी कंप्लीटेड एंड देन कैन गो टू डी, और व्हाट वी कैन डू कि हम ये 3 रिसोर्सेज जो हैं वो आउट ऑफ 5 हम 3 रिसोर्सेज जो है वो डी को एलोकेट करेंगे, डी विल बी कंप्लीटेड, डी विल रिटर्न 7 और 3 हमारे पास कंप्लीट 10 रिसोर्सेज हो जाएंगे, जो इसमें से 5 रिसोर्सेज हम ए को देकर ए को कंप्लीट करा देंगे। लिहाजा स्टेट जो थी आपकी एट बी, यहां पर ए इज सेफ, बी इज सेफ, ए और बी दोनों सेफ हैं। सी कहता है अनसेफ स्टेट है। अब इस अनसेफ स्टेट को देखते हैं कि ये कैसे है। कहता है सी इज अनसेफ। अब क्या किया कि आपके पास अवेलेबल थे 2 रिसोर्सेज, ये वाली बी से आप सी में गए ना, आपने ये किया, सॉरी भी मैं थोड़ा सा मुझे शफल करना पड़ रहा है। वी इशू 1 टू बी, आउट ऑफ 2 अवेलेबल आपने एक बी को दे दिया, अब आपके पास एक रह गया रिसोर्स। अब इस एक रिसोर्स से ना तो आप बी को फारिग कर सकते हैं, ना सी को, ना डी को, ना ए को। लिहाजा जो आपने डिसीजन लिया था कि आप बी को एक रिसोर्स दे दें, वो डिसीजन गलत हो गया था, और आपको सी के टाइम पे जाके पता चला, जब आप सी पे पहुंचे तो आपको पता चला कि यू आर एट द अनसेफ स्टेट। ओके, आगे चलिए। नाउ बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, दिस इज जहां पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए डेमो तैयार किया हुआ है।
अब ये सिचुएशन है कि वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 5 प्रोसेसेस A B C D and E and this is the matrix that says that के टेप ड्राइव्स कितनी चाहिए, A को प्लॉटर्स कितने चाहिए, स्कैनर कितने चाहिए, CDs कितनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स है जो कि पार्ट 1 है, जिसको हम कहते हैं कि रिसोर्स असाइंड। करंटली A को 3 टेप ड्राइव्स और 1 स्कैनर और 1 CD एलोकेट हुई है। B is just got 1 plotter, C has got 1 tape, 1 plotter and 1 scanner, D has got 1 tape and 1 CD, E has got nothing, and these are the maximum requirements, maximum need. A still need 1 tape, 1 plotter and no scanner. B still require 1 plotter, 1 scanner and 2 CD-ROMs. C requires 3 tapes and 1 plotter, and D requires 1 scanner and E requires 2 tapes and 1 plotter and 1 scanner. So available resources क्या है? These are the total existing resources. 6 tapes, 6 tape drives, 3 plotters, 4 scanners and 2 CDs. ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ भाई, इस सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया? अब out of which processes have how much? Processes have got 5 tape drives, have the 3 4 5 5 have already been allocated. Plotter 3 allocate हुए हैं, इसको देखें 1 2 3 plotters allocate हुए हैं, 2 scanners allocate हुए हैं and 2 CD drives allocate हुई हैं। 2 scanners and 2 CD drive। तो अवेलेबल कितना हुआ? इसमें से इसको माइनस कर दें। 6 minus 5 is 1 and 3 minus 3 is 0, 4 minus 2 2 and 2 minus 2 0। So out of these 1 0 2 0, now we'd like to see कि हम इसमें से किस प्रोसेस को सर्विस दे सकते हैं। ये मैंने कहा कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। ये मैं अब ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, this what we have explained and this is the algorithm. Look for a row R in which n is less than equal to a। इसमें से वो रो हमने फाइंड करनी है where n, अब उस रो में से देखें, ये तो वो रिसोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी एलोकेट हुए हैं। हमने देखने हैं कि which are still required। तो हमारे पास है 1 0 2 0 और हम इसमें से देखेंगे कि क्या 1 0 2 0, नो, ये इसकी वजह से आप इसको सर्व नहीं कर सकते। 1 0 2 0 ये सर्व नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर 0 है और इट रिक्वायर्स 1 1 3 1 0 0, ये आप इसको भी नहीं सर्व कर सकते। 1 0 2 0 इसको आप सर्व कर सकते हैं, सिर्फ इसको सर्व कर सकते हैं, इसको भी नहीं सर्व कर सकते। ठीक हो गया? तो पहले हम देखते हैं कि डी को सर्व करते हैं। यहां मैं अब आपके लिए तैयार किया हुआ है। लेट्स वी एलोकेट द रिसोर्सेज टू डी। और ये अगर आप देखिए 1 0 2 0, we have got 1 tape drive, we have got no plotter, we have got 2 scanners and we have got no CD drive. No CD drive. So this process is just requiring 1 additional scanner and we have got 2 additional scanner. हम ये इसको allocate कर देते हैं। Once we allocate that, तो फिर हम इसको stuck out कर देंगे और हम assume करेंगे कि it will return the resources back to us। अब जो resources हमारे पास available होंगे वो हमने यहाँ पर update कर दिए हैं दोबारा से। अगर आप देखें तो total number तो वो वही रहता है 6342। ये कहाँ से आया? 422, ये यहाँ से आया 3 and 1 4, 1 and 1 2, 1 and 1 2 and 1। So 4 2 2 1 जो है मैंने आपको बताया कि these are the resources still catch hold by the processes। अवेलेबल क्या है? इसमें से इसको माइनस किया। 6 minus 4 is 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1। ठीक होगी बात? अब हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है 2 1 2 1। एल्गोरिथम ये कहता है लुक फॉर अ रो आर सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू a। ये हमारा दिस इज a 2 1 2 1। और अब देखें n में से कहां से मीट हो सकता है। 2 1 2 1 में ये a भी सेटिस्फाई हो सकता है, 2 1 2 1 में ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता, 2 1 2 1 में ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता, 2 1 2 1 में E भी सेटिस्फाई हो सकता है। सो वी कैन सेटिस्फाई आइदर A और E। सो वी टेक अ डिसीजन, हम A को सर्विस दे रहे हैं, ठीक, और A को हमने सर्विस दी और हमने 1 1 0 0 जो है A को एलोकेट कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा प्रोसेस करेंगे, A को स्ट्रक आउट कर दिया हमने और यहाँ पे भी A को स्ट्रक आउट कर दिया।
टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास वही टोटल है. प्रोसेसेस होल्डिंग one tape drive, 1 and 1 2 plotters, 1 scanner and 0 CD drive. तो ये प्रोसेसेस आर कंट्री होल्डिंग. ओके, इसमें से इसको माइनस करें, वी विल हैव इन द अवेलेबल 5 tape drives, 1 plotter, 3 scanners and 2 CD-ROMs. इसके बाद हम सर्व कर सकते हैं बी को. हम इसमें से देखें तो बी को सर्व किया, यहाँ पर हमने बी को सर्व कर दिया और बी ने सर्व करने के बाद दोबारा मैं बार बार अब आप खुद ही कैलकुलेट करें इसको. ठीक हो गया. उसके बाद हमने सर्व किया सी को सर्व करने के बाद इसको दोबारा अपडेट किया. 5232 इज 5232, हम इसको सर्विस दे सकते हैं और इसके बाद ई को हमने सर्विस दे दी. सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन के हमारे पास जो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करते हुए व्हेन वी आर गोइंग टू एलोकेट द रिसोर्सेज जस्ट लाइक दिस बैंकर्स एल्गोरिथम, वी कैन यूटिलाइज दिस बैंकर एल्गोरिथम्स कॉन्सेप्ट इन एलोकेटिंग व्हाइल एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस. ठीक, चलिए जी, ये तो था हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस. नेक्स्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन. ठीक, 4th टॉपिक है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे. व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन? रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक अकरिंग बाय डिनाइंग वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन. अगर आपको याद होगा इन द फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल, जिसमें हमने आपसे कहा था कि इन ऑर्डर टू अ डेडलॉक टू अकर, इन ऑर्डर टू ए डेडलॉक टू अकर, there are 4 necessary conditions that must be met. Number 1, mutual exclusion. Number 2, hold and wait. Number 3, no preemption. And number 4, circular wait. यानी कि ये चारों conditions का साइमल्टेनियसली होना, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो डेडलॉक अकर नहीं होगा. So what we have to do basically in order to prevent a situation for a deadlock to occur, in order to prevent a deadlock to occur, what we can do, we can attack इन 4 कंडीशंस को हम अटैक करें और इसमें से किसी ना किसी एक कंडीशन को हम डिनाई कर दें, किसी ना किसी एक कंडीशन को हम ट्रू कर दें कि वो कंडीशन जो है वो ट्रूली नेगेट हो गई है, सो डैट के हम फिर डेडलॉक को, जो उसकी डेफिनेशन है उसकी बेसिस के ऊपर हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो लेट अस सी दीज 4 कंडीशंस वन बाय वन, इनको हम कैसे अटैक कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलॉक प्रिवेंशन दैट अटैक द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन. म्यूटेक्स क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन. म्यूटेक्स मैंने क्यों यूज किया कि हमने मेमोरी के प्रोसेस मैनेजमेंट में म्यूटेक्स की टर्म को म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज किया था. सो हम म्यूचुअली एक्सक्लूड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कि प्रिंटर है, अगर जो प्रिंटर को हम एक वक्त में एक प्रोसेस को देते हैं तो म्यूचुअली बाकी प्रोसेसेस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. तो हमने उसका सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि हम वो जो आपको मैंने बताया था स्पूलिंग कर दें. स्पूलिंग को मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर के अंदर. आप एक प्रिंट डेमन बनाए और प्रिंट डेमन जो है वो एक एक प्रोसेस को पिक करे, उसके प्रिंट जॉब को, और वो प्रिंट करे. तो इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग डिवाइस एक्सक्लूसिवली to one process and mutually excluding all other process, हम उस कंडीशन को डिनाई कर देते हैं. अब हमने जो प्रिंटर है उसको तमाम प्रोसेसेस को सर्विस देनी है थ्रू डेमन. अब डेमन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको आप बड़ी आसानी से आपके कंट्रोल के अंदर है. आप उसको डेमन जो है उसको प्रिंट जॉब दे रहे हैं, प्रिंटर नहीं दे रहे. तो आप जब भी कोई प्रोसेस जो अपना जॉब कंप्लीट करेगा तो वो उसकी जॉब को उठाएगा, भी जाके सर्विस करके दे देगा. Okay, so directly you are not allocating the device to the process, rather indirectly allocating the device to the process with the concept of spooling. So not all problems lend themselves to spooling, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को आप स्पूल नहीं कर सकते. कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी स्पूलिंग नहीं हो सकती.
ठीक है, सीपीयू डायरेक्ट भी चाहिए होता है, लेकिन सीपीयू की एग्जांपल है कि वो प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स है, नॉन प्रीएम्प्टेबल नहीं है। ओके, तो आप टेप ड्राइव जो है उसको अगर आपने स्पूल करना है तो चलिए टेप ड्राइव को भी हम स्पूल करते हैं। और कोई एग्जांपल ऐसी हो सकती है डेटाबेस इंफॉर्मेशन जिसको आप स्पूल के जरिए नहीं देंगे, बल्कि प्रोसेस जो है वो खुद उसको अपडेट करना चाहेगा डेटाबेस रिकॉर्ड को। ओके, सो स्टिल हैव contention for disk space with spooling। तो disk space जो है उसके लिए भी आप डिस्क को डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क की कुछ स्पेस ऐसी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो सेगमेंट है, जो स्वैप एरिया है, वो स्वैप एरिया जो है इनडायरेक्टली एलोकेट होता है प्रोसेसेस को। सो यू कैन जस्ट मैनेज द डिस्क दैट पर्टिकुलर एरिया विच हैज ऑल द फीचर्स, जैसा कि आपका प्रिंट डायमंड हैंडल करता है, इसी तरह स्वैप एरिया के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में इट्स रियली नॉट ईजी कि आप ऐसा हर एक चीज को उठाकर स्पूल करवे। So deadlock prevention, next is attack, hold and wait. Hold and wait is a situation where a process is holding few resources and waiting for some other resources. तो इसको भी हम कैसे अटैक कर सकते हैं? So we may not know in advance the requirements of all the resources. उसके लिए हम कहते हैं कि अगर इस शुरू में सारे resources बता दें तो हम hold and wait करवा सकते हैं कि प्रोसेस को हम resources दें ही ना, अगर हमें शुरू में पता हो कि इसने फर्दर रिसोर्सेज क्या डिमांड करने हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि इन द बिगिनिंग वी कैन नॉट डिटरमिन कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज वी टाई अप रिसोर्सेज फॉर द एंटायर टाइम। वो जो हमने पिछले सोल्यूशन निकाला था वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम पूरे टाइम के भी रिसोर्सेज को हम टाई अप कर देते हैं प्रोसेसेस के साथ। सो बिफोर रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स वी मस्ट फर्स्ट टेम्परेरीली रिलीज ऑल allocated resources and then try to acquire all of them once again. So concept क्या है hold and wait का, कि if you are holding few resources and if you are waiting for some other resources, what you can do कि release all the resources which you are currently holding and then try to acquire all the resources once again. अगर सारे के सारे resources आपको allocate हो गए then you can proceed further। और अगर कुछ रिसोर्सेज आपको एलोकेट हो गए प्रोसेस को और कुछ एलोकेट नहीं हुए देन यू डू नॉट अलाउ प्रोसेस टू प्रोसीड। आप उस प्रोसेस को चलने ही ना दें और उसको स्टार्ट में ही रोक लेंगे। भाई सारे रिसोर्सेज जब आपको मिलेंगे तब आपने एग्जीक्यूट होना है। ये है जनाब हमारा कॉन्सेप्ट। सो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? अ प्रोसेस इज गिवन इट्स रिसोर्सेज ए ऑल और नन, या तो सारे के सारे रिसोर्सेज देंगे या कोई रिसोर्स नहीं देंगे। सो आइदर अ प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड प्रोसीड, और इफ इट गेट्स नन ऑफ देम एंड वेट अंटिल इट कैन। जब तक वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे वो प्रोसेस जो है वो वेट करता रहेगा। तो जाहिर है कि इसकी कोई प्रॉब्लम भी होगी, इसकी कोई प्राइस भी पे करनी होगी। एडवांटेज ये है कि इट ऑल्सो वर्क्स एंड रीजनेबली इजी कोड एज कंपेयर टू अदर जो अवॉइडेंस वाला जो कोड है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज है कि चंद रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं सिर्फ एक रिसोर्स की खातिर। फॉर एग्जांपल अ प्रोसेस रिक्वायर्स n resources for the completion, n-1 resources are available, they will not be utilized, they will remain unutilized because आप उस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस इज वेटिंग दी n नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो जब तक आपका nth रिसोर्स नहीं आएगा n-1 रिसोर्सेज जो है दे विल आल्सो रिमेन वेस्टेड। और दूसरे यू आर साइमल्टेनियसली एलोकेटिंग ऑल द रिसोर्सेज टू द प्रोसेस फॉर द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम, तो वो भी एक वेस्टेज है प्रोसेसेस की। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है कि भूख से कोई आदमी मर जाए, भूख से एक प्रोसेस मर जाए। व्हाट डज इट मीन? कि प्रोसेस kept waiting for allocation of resources until the process decides
कि अब मुझे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डू डैट, यानी कि अपनी मौत आप मर गया प्रोसेस। यानी कि किसी ऐसा यूज़र है आपका जो वेट करता रहा कि उसे रिसोर्सेज मिलते रहे, लेकिन सिंस रिसोर्सेज वर नॉट एलोकेटेड, एक लंबे टाइम क्वांटम के बाद, एक लंबी स्टारवेशन के बाद, द यूजर डिसाइडेड दैट ओके नाउ आई हैव टू गो बैक होम, आई हैव टू गो बैक माय वर्क, सो आई एम नॉट डूइंग द जॉब, सो आई डोंट नीड अ प्रोसेस टू रन एट दिस स्टेज। इसको हम कहते हैं स्टारवेशन। नेक्स्ट इज नो प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्ट क्या है? जबरदस्ती किसी प्रोसेस से रिसोर्स ले लेना। इट इज ट्रिकी एट बेस्ट एंड इम्पॉसिबल एट वर्स्ट। दोनों सिचुएशन में ये ट्रिकी भी हो सकता है और इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ट्रिकी सिचुएशन वो मैंने आपको बताई कि प्रिंटर में आपको पता है हाउ मेनी पेजेस द प्रोसेस हैज प्रिंटेड, आप उस टैग को उठाएं, पुट इट सेपरेटली, टेक द प्रिंटर बैक, एलोकेट इट टू अनदर प्रोसेस, लेट द अदर प्रोसेस कंप्लीट द जॉब एंड लेट द अदर प्रोसेस कंप्लीट एंड देन रीरन द प्रोसेस विच यू हैव सस्पेंडेड, और अब जब रीरन करेंगे पुट द स्टैक बैक देयर। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन, और लेकिन इट माइट बी इम्पॉसिबल। अगर आपको पता नहीं, अगर ये आप टेप ड्राइव के साथ कर रहे हैं और वहां से आप टेप ड्राइव को जबरदस्ती वापस लेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू रन प्रिसाइजली एट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे आपने उसके अंदर चेक पॉइंट्स ही क्यों ना डिफाइन किए हुए हों। सो दैट माइट बी डिफिकल्ट। सो इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस बिफोर इट इज फिनिश्ड विद देम forcefully and preempt a resource. Preemption ऐसे ही है कि आप forcefully take the resource back without ill effect, लेकिन not necessarily we take the resource back without the ill effect, जो मैंने अभी आपको explain किया। So advantage क्या है इसकी? It also works, but possibly better resource utilization, और ये इसकी एडवांटेज है कि ऐसी सूरत में रिसोर्सेज जो है वो अनयूटिलाइज्ड नहीं है, आप रिसोर्सेज को काम करने देते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि जी ये करते रहें, और ज़बरदस्ती जब आप रिसोर्स किसी प्रोसेस से ले लेंगे तो ये वही है कि विल सी द ब्रिज, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल रीच द ब्रिज। जब आप उस प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे तो आप उसको प्रिवेंशन के लिए आप ज़बरदस्ती प्रीएम्प्ट करवेंगे रिसोर्स किसी प्रोसेस से। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, देन ऑब्वियसली दिस इज the best situation to handle the deadlock. Problems क्या है? The cost of removing a process resource. वो आपका जो client है, वो आपका process है, if the process is doing something sensitive and you have taken the resource back, so you have put the process in a difficult situation. हो सकता है कि उस situation से process अपने आप को recover ही ना कर सके. So that is something very tricky. कि जनाब आप प्रोसेस जो है अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, सो दैट माइट काज अ बिग लॉस टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन का इतना एक सेंसिटिव डाटा था कि जिस डाटा को यू हैव लॉस्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल प्रीएम्प्शन ऑफ द रिसोर्स। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक क्लाइंट है एंड देन आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स कि हमने ये वाली फैसिलिटीज इस ऑर्गेनाइजेशन से यूज नहीं करनी बिकॉज वी हैव सफर्ड, और ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको सू कर दे। सो it is a big risk. So the process is likely to lose work it has done, and how often does this occur? ये एक बात है देखने वाली कि ये अकर कितनी दफा होता है। ठीक है, ये वही सिचुएशन है कि वो ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम के आप नजरें हटा लें वहां से कि ये अकर कितनी दफा होता है। कोई अगर एक भी चांस है और वो चांस इतना है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको सू करे, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन, अगर आप किसी से जबरदस्ती रिसोर्स ले लेंगे देन देयर इज अ चांस कि वो प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन का शिकार हो जाए। दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू। नाउ अटैकिंग दी सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट भी वही है कि यू आर होल्डिंग फ्यू रिसोर्सेज एंड यू आर वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज, बट यू आर वेटिंग इन दी सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म के अंदर मीन्स के वो जो डेड वर्क वाला साइकिल है वो अकर हो रहा है। तो लेट अस सी कि क्या उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं हम? क्या ऐसी सिचुएशन है कि हम उस साइकिल को ब्रेक कर दें? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आउट ऑफ दी वन ऑफ दी 4 सिचुएशंस जो है उसको हमने अटैक करना है। सो
सोल्यूशन इसका हम क्या दे रहे हैं, सोल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि न्यूमेरिकली ऑर्डर रिसोर्सेज, और यहां पर ए में हमने इमेज सेटर को 1 दे दिया, स्कैनर को 2, प्लॉटर को 3, टेप को 4 और सीडी ड्राइव को 5। हमने इनको नंबरिंग असाइन कर दी और यहां पे हमने रिसोर्स ग्राफ बना लिया। I is a resource allocated to A, J is a resource allocated to B, और ये I जो है ये एक नंबर है। So 3 is allocated to A और 2 is allocated to B, for example. Now, process can request a resource whenever they want, but all resources must be made in numerical order. यानी कि अगर एक प्रोसेस जो है जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्स नंबर 3 है, कैन नॉट डिमांड रिसोर्स नंबर 2। हायर ऑर्डर का रिसोर्स देने के बाद 3 जो है एक हायर ऑर्डर का नंबर है, तो इफ द प्रोसेस ए इज होल्डिंग अ प्लॉटर, देन द प्रोसेस ए कैन नॉट रिक्वेस्ट अ स्कैनर। Similarly, if a process B is holding a tape drive, then the process B cannot request a plotter. तो आपने अगर रिसोर्स डिमांड करना है तो A कैन रिक्वेस्ट टेप ड्राइव और CD ROM एंड B कैन रिक्वेस्ट, अगर B जो है वो टेप ड्राइव डिमांड कर रहा है तो B ऑलरेडी होल्डिंग द हाईएस्ट नंबर, सो B कैन नॉट रिक्वेस्ट एनी रिसोर्स, क्योंकि ये सारे नंबर जो है सपोज उससे लेस हैं। सो एग्जांपल, a process may request first a printer and then a tape drive, but it may not request first a plotter then a printer. ठीक होगी बात? Ascending order के अंदर request करेगा process. Only allow one resource at a time. Request all the resources in numerical order. एक वक्त में एक रिसोर्स देंगे और वो भी न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर हम उसको देंगे, बट नो न्यूमेरिकल ऑर्डर मे एग्जिस्ट। द प्रॉब्लम इज दैट अब ये न्यूमेरिकल ऑर्डर जो है ये आएगा कहां से, कौन असाइन करेगा? क्या कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है विच इज कंसिडर्ड एन आइडियल वन? दैट इज आई अफ्रेड नॉट पॉसिबल, बट स्टिल एक है कि अगर सपोज नंबरिंग हमने कर दी है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी नंबरिंग आर वेरी एफिशिएंट, तो येट अगर ये बात अजम्पशन है तो देन द एल्गोरिथम वर्क्स। इंप्लीमेंटेशन क्या है? रिसोर्सेज आर यूनिकली नंबर्ड, जो हम कर चुके हैं। Process can only request resources in a linear ascending order और thus preventing the circular wait state. अब आगे देखते हैं जनाब इसका एडवांटेज क्या है। It also works, has been implemented in some operating system. Good. Problem क्या है? Resources must be requested in ascending order of resource number rather than as per requirement. रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है भाई, नंबर के हिसाब से रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, विच इज एन इलॉजिकल रिकमेंडेशन। सो रिसोर्स नंबरिंग मस्ट बी मेंटेन्ड बाय समवन एंड मस्ट रिफ्लेक्ट ओवर एवरी एडिशन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे उसमें ये जो लिस्ट है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट, और उस लिस्ट की बेसिस के ऊपर वहां पर ये इम्प्लीमेंटेशन जो है विल बी इफेक्टिव। Difficult to sit down and write just proper या right sort of code, यानी कि आप सही कोड लिखना जो है is very very difficult. ठीक है? So what we have basically discussed, we have discussed the 4 approaches for prevention. हमने कहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सोल्यूशन हमने कहा क्या किया? स्पूल एवरीथिंग, हर चीज को स्पूल कर दें जैसे प्रिंटर को किया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मैंने आपको बताया इट इज नॉट पॉसिबल। होल्ड एंड वेट, रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली। ऐसा नहीं है कि आपके पास चंद रिसोर्सेज हैं और चंद रिसोर्सेज जो है ना वो आप बाद। होल्ड एंड वेट भी ऐसे ही है, हमने उसको बताया था कि फिर दूसरी सूरत यह है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको भी विड्रॉ करें, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्राई करें सारे रिसोर्सेज, अगर सारे एलोकेट हो जाएं काम करें, नहीं तो कोई भी रिसोर्स रखने का हक नहीं है आपको, यू हैव टू रिटर्न बैक द रिसोर्सेज। ओके। तीसरा है नो प्रीएम्पशन, मींस टेक द रिसोर्स अवे, फोर्सफुली टेक द रिसोर्स अवे, और मैंने बताया बड़ा रिस्की है, इट मे काज एम्बैरसमेंट, इट मे काज अ प्रॉब्लम, इट मे काज अ लिटिगेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन to indulge in with any other organization। अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी का प्रोसेस आप इस तरह किल कर देते हैं या उससे जबरदस्ती रिसोर्स लेने से वो प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
Circular wait, order resource numbers and request the resources in the ascending order. So this was the summary that we have proposed for preventing a system to go into the unsafe state or go into the state of the deadlock. ठीक, अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, अदर टॉपिक्स हैं जो डेडलॉक से साथ कंपेयर भी की जा सकती हैं, जो डेडलॉक रिसोर्सेज की बेसिस पर अभी तक हमने डिस्कस किया, बट देर आर सर्टन डेडलॉक्स विच आर नॉट नेसेसरीली ड्यू टू रिसोर्स बेसिस, और वो है जनाब टू फेज लॉकिंग नंबर 1, देन है कम्युनिकेशन डेडलॉक नंबर 3 लाइव स्टॉक, और नंबर 4 है स्टारवेशन। आइडियली तो मुझे इन चारों के बाद इसको एक्सप्लेन करना था, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा है तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। फर्स्ट वन है टू फेज लॉकिंग इन आवर डेटाबेस एनवायरनमेंट, इन डेटाबेस सिचुएशन इट हैपेंस क्वाइट frequently. You are updating certain records and then you engage in with some additional records. ठीक है, आपने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स को एलोकेट किया हुआ है, आपने उनको फाइल ओपन करके उन रिकॉर्ड्स को लॉक किया हुआ है, एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट, एंड देन यू डिजायर टू लॉक सम एडिशनल रिकॉर्ड्स। अब ये वो फिजिकल रिसोर्स नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स है बेसिकली। सो व्हाट इज डन, ये भी वही है। फर्स्ट फेज में इट इज रिकमेंडेड कि लॉक ऑल द नीडेड रिसोर्सेज इफ lock succeeded, otherwise go to if you are successful in locking all the resources, then go to step 2, or otherwise release all the locks। वही सिचुएशन है, क्या है वो होल्ड एंड वेट वाली, लेकिन ये रिसोर्स नहीं है, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर भी हम इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि हम चाहते ये हैं कि डेडलॉक कैसे हो सकता है कि एक प्रोसेस ने एक रिकॉर्ड को लॉक किया हुआ है और दूसरे रिकॉर्ड को वो लॉक करना चाह रहा है, और अगर उस रिकॉर्ड को सेकंड को लॉक नहीं कर सकता तो वही चांस हो सकता है डेडलॉक अकर हो सकता है, और ये डेडलॉक जो है रिकॉर्ड की वजह से होगा। और डेडलॉक क्या है कि जब तक उसको सेकंड रिकॉर्ड जो है लॉक नहीं करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो रिलीज नहीं हो सकता। ठीक, और जो दूसरा रिकॉर्ड है वो किसी दूसरे प्रोसेस ने लॉक किया हुआ है, एंड द सेकंड प्रोसेस ट्राइज टू लॉक दी अनदर रिकॉर्ड विच इज लॉक्ड बाय अनदर प्रोसेस। वो उस वक्त तक उसको रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वो पहला प्रोसेस पिछले रिकॉर्ड को रिलीज ना करे। वही सिचुएशन है जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन की। सो ये एग्जैक्टली जी आपकी डेडलॉक वाली सिचुएशन है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डेटाबेस। सिमिलरली द डेडलॉक कुड अकर इन द कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। उसकी भी कोई एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये टू फेज लॉकिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और ये आप कहते हैं कि फर्स्ट आप लॉक के अंदर, उसमें फेज के अंदर लॉक ऑल दी नीडेड रिसोर्सेज, इफ द लॉक सक्सीड्स गो टू सेकंड फेज, सेकंड स्टेप यहाँ पर, अदरवाइज आप रिलीज करें, तमाम रिसोर्सेज को रिलीज करें और गो टू फर्स्ट फेज, दोबारा से ट्राई करें कि सारे रिसोर्सेज आपको मिल गए। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। नाउ कम्युनिकेशन डेडलॉक, उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से, फिर हम उसकी बात करेंगे। सपोज प्रोसेस ए सेंड्स अ रिक्वेस्ट मैसेज टू प्रोसेस बी एंड देन ब्लॉक अंटिल बी सेंड्स बैक अ रिप्लाई मैसेज टू ए। ठीक है, याद है आपको, हमने ये पढ़ा हुआ है मैसेजेस के अंदर, और ये हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में ये एग्जांपल पढ़ी हुई है, देखी हुई है। नाउ सपोज दैट द रिक्वेस्ट मैसेज गेट्स लॉस्ट, A is blocked waiting for a reply and B is blocked waiting for a request asking it to do something। B ने सेमाफोर को डाउन किया और किसी मैसेज को रीड करने की कोशिश की और ब्लॉक है, वेट कर रहा है कि वो A उसको मैसेज भेजे ताकि मैं अनब्लॉक हूँ। A ने मैसेज भेज दिया और मैसेज भेजने के बाद A ब्लॉक हो गया कि B उसको रिप्लाई करेगा तो मैं अनब्लॉक हो जाऊंगा। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने देखा ये गांधेवू सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई थी लेक्चर के दौरान जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। अब रिप्लाई जो है डेट हैज बीन लॉस्ट,
अगर वो रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ए अज्यूम कर रहा है आई सेंड द मैसेज और वेटिंग फॉर द रिप्लाई, बी को मैसेज मिला ही नहीं तो बी रिप्लाई कैसे दे। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी दोनों डेडलॉक सिचुएशन के अंदर है प्रोसेसेस, हालांकि रिसोर्स नहीं है, कम्युनिकेशन डेडलॉक हो गया। और इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, हम इसको हैंडल ऐसे करते हैं कि हम टाइमर लगाते हैं जिस तरह वॉचडॉग टाइमर होता है, और उस टाइमर के बाद प्रोसेस ये देखता है कि क्या मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आई है, रिप्लाई आया है। अगर रिप्लाई नहीं आया देन ए अज्यूम कि जनाब बी को मैसेज नहीं मिला, तो वो उस मैसेज को रीट्रांसमिट कर देता है। लेकिन डेडलॉक तो अगर हो सकता है ना, और ये जो डेडलॉक है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, इट इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सिचुएशन विच इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन डेडलॉक। फिर ये कम्युनिकेशन डेडलॉक जो है इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम देखते हैं। सपोज दैट all the packets at router A needs to go to B, and all the packets at B needs to go to C, and all the packets at C needs to go to D, and all the packets of D needs to go to A. No packet can move because there is no buffer at the other end. ये हम क्या बात कर रहे हैं, वापस चलते हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। Here we have got two types of resources. One is the computer that wanted to send the messages and it has got a buffer, और ये आपका राउटर है, और every router has got quite a good number of buffers। लेकिन इस particular example में हम कहते हैं कि there are only 8 buffers, just to simplify the things. A wanted to send a message, this is A wanted to send a message to B, but B के जो बफर हैं वो already fill up हुए हैं because B wanted to send a message to C. C के जो buffers हैं वो already full हैं, cannot receive a message from B because the buffers are full and it is waiting for D कि जनाब B के बफर खाली हो तो मैं अपने मैसेज भेजूं, और D के जो buffers and they are all filled up because D wanted to send a message to A. So एक circular situation ऐसी आ गई in a communication system. A node is either a computer or a router, so that contains the buffers, or if no buffer is available, इस particular example में अगर हम देखें तो इसको अगर हम वापस जाएं यहाँ पर कि we have a deadlock, not the classical resource deadlock, but this situation is called as a communication deadlock. तो ये आपका basically resource deadlock नहीं हुआ, बल्कि ये आपका communication deadlock है। Okay? live lock, ये भी हम एक तरह से पढ़ चुके हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस पिछले लेक्चर में भी दी थी और सेमाफोर्स में भी दी थी कि वी हैव गॉट द सेमाफोर्स, और वी वांटेड या क्रिटिकल रीजन हमने डिफाइन किया, और वी कैन से दैट कि वी वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल रीजन इनटू द ऑर्डर, वी डाउन ए एंटर इनटू द क्रिटिकल रीजन, देन वी एंटर रिसोर्स 2, और वही सेमाफोर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, डाउन डाउन एंड देन यूज इट एंड देन रिटर्न। वाइल अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ए ने रिसोर्स 1 को डाउन किया और एंटर हो गया, नाउ ए इज ट्राइंग टू एंगेज और एलोकेट, गेट द रिसोर्स 2 टू बी एलोकेटेड। इसी वक्त साइमल्टेनियसली बी आया था और बी ने 2 को एलोकेट करा दिया, और बी इज नॉट ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ द रिसोर्स नंबर 1। A is holding 1 waiting for 2 and not going to release A until 2 is released. B is getting catch hold of 2 and waiting for 1, not going to release 2 until gets A 1. So both are in the डेडलॉक सिचुएशन। ये भी डेडलॉक जो है किसी रिसोर्स की वजह से नहीं हो रहा, although ये वो क्रिटिकल रीजन, इसलिए हमने वो सेमाफोर को डाउन नहीं किया हुआ, क्रिटिकल रीजन में एंटर होने के लिए हम ये बात इस तरह कर रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि इन द कंप्यूटर साइंस एनवायरनमेंट इट कैन रियली हैपन in some situation polling busy waiting is used to enter into the critical region or access our resource. This strategy is often use the mutual exclusion condition, and that may result into the deadlock. So
आपने एटॉमिक एक्शन तो किया कि उसको डाउन करें और एलोकेट करें, बट द कंसीडर एन एटॉमिक प्रिमिटिव इन विच कार्विंग प्रोसेस टेस्ट एट म्यूटेक्स एंड आइदर ग्रैब रिसोर्स और फेल। अब ब्लॉक होने की बजाय अगर वो उसको कांस्टेंट बिजी वेटिंग और टेस्ट करता जा रहा है, टाइम क्वांटम खत्म करता है, दूसरा प्रोसेस आता है और दूसरा प्रोसेस भी यही एक्सरसाइज करता है। सो वी आर इन ए सिचुएशन जहां पे कि डेड वर्क जो है वो अकर हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज बट बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग कंडीशन। अगर मुझे याद आ रही है एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी इन्वर्जन में भी डेड वर्क हो गया था। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो क्या था और वो कैसे डेड वर्क हुआ था, तो उसके भी आपको लेक्चर जाके सुनना चाहिए। ठीक है, आप जाके उस लेक्चर को दोबारा सुने, या अगर आपको याद है तो देन इट्स वेरी गुड। प्रायोरिटी इन्वर्जन में एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसने क्रिटिकल रीजन को ब्लॉक कर दिया है और वो खुद प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होता नहीं है, क्योंकि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो आ गया है। अब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो सीपीयू को ले रहा है और बिजी वेटिंग में टाइम वेस्ट कर देता है सारे का सारा, और वो उसमें एंटर इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने क्रिटिकल रीजन को लॉक किया हुआ है, और लो प्रायोरिटी प्रोसेस उससे तक नहीं चल सकता है जब तक कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था डेड लॉक हो जाएगा सारा, और ये भी डेड लॉक जो है वो रिसोर्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन की वजह से है, डेट माइट हैव अराइज्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लो प्रायोरिटी प्रोसेस एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि डेड लॉक माइट अकर due to the situation, due to the mostly they occur due to the resources, but they may occur due to a situation जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, जैसा कि टू फेज वॉकिंग है, जैसा कि लाइव लॉक है, जैसा कि प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम है। ओके, विद दिस we have concluded the discussion and we have finished the deadlock topic. और I think हम practically this is the end of the course also, because the rest of the lectures, 3 lectures हमारे और रहते हैं अभी, तो maybe I'll be discussing the case studies and something else। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक से केस स्टडीज जो है obviously I'll pick it up from your textbook, लेकिन हम नए कॉन्सेप्ट्स की बजाय अब हम देखेंगे जो कुछ हमने पढ़ा है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह ने के बाद।